Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Chapter in this course, positive. All right, when we look into positive psychology, we will see आप इस diagram में अगर देखें तो positive psychology is all about all these aspects. ये जितनी चीज़ें हैं इन सब ये सारे आपके individual chapters हैं. इन सब को हम इंडिविजुअली जो है वो लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी ने लेट्स से क्रिएटिविटी पे बात की तो व्हाट क्रिएटिविटी इज़, eventually what is the effect of creativity on individual, how creativity impacts individual's life, how emotions impact individual lives, what are the different types of emotions, how positive emotions impact or influence one's life, why these emotions are important, why these emotions are significant in one's life, what is happiness, what is well-being, how can we achieve well-being, how can we remain happy in difficult times as well, so on and so forth. What are psychological well-being, what is positive education, what is positive therapy, what is motivation and goal theories in positive psychology, what are the strengths and courage, what are different, how different strengths in individuals makes or leave their marks in a positive way, how we can cope with stress, how we can cope with choices, how we can cope with certain disorders, so on and so forth. Alright, moving on to the central questions, or formally let's begin positive psychology. Central questions positive psychology के ये हैं कि critically discuss the differences between positive psychology and psychology as usual. Psychology as usual की जब हम बात करते हैं तो you must be thinking, all of you, कि अगर हम ये कोर्स पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या जो रेस्ट ऑफ द साइकोलॉजी है या जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है या जो साइकोलॉजी एज यूजुअल है, इज़ इट अ नेगेटिव साइकोलॉजी और व्हाट आई मीन, क्या कि नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरह से हमने इसको पॉजिटिव का और जो यूजुअल साइकोलॉजी है इसका तो ऑपोजिट नेगेटिव बनता है. दिस मीन्स दिस क्लियरली इलस्ट्रेट दैट द साइकोलॉजी एज यूजुअल इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव साइकोलॉजी. All right, we will look into it कि how psychology as usual was basically not discussing the positive aspects of the psychology. उस psychology की unfortunate ये रहा कि उसने बहुत ज़्यादा टैप किया आपके इश्यूज़ पे, एबनॉर्मेलिटीज़ पे, प्रॉब्लम्स पे. वो प्रॉब्लम फोकस्ड ज़्यादा रही. जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी है वो इन चीज़ों को एड्रेस करने में बहुत टाइम गुजर गया. रिसर्चेस आज तक जो क्लिनिकल एबनॉर्मल साइकोलॉजी हैं या बाकी डिफरेंट एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी हैं, दे आर मोर इनटू एड्रेसिंग issues of people, they are more into addressing the miseries and illnesses of people. ठीक है. On the other hand, positive psychology, when it actually came in the mainstream world, तो उन्होंने कहा कि जी we will talk about all the positive aspects, we will talk about all strengthening aspects or flourishing aspects of human side. हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इंसान को फ्लरिश्ड बना सकते हैं. ठीक है. सेकेंड इसका एम, सेंट्रल क्वेश्चन ये था कि इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी एज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एज इट क्लेम्स टू बी. ऑल राइट, एक ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी रहा, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल रही पॉजिटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री में कि इसको हमेशा एसोसिएट किया गया ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से. एक another school of thought that we are going to discuss in detail in all these upcoming 3 lectures of introduction. ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि how we can actually separate positive psychology discipline from the humanistic psychology discipline. And is it actually कि humanistic psychology जो है उसने वो बातें नहीं बताई थी जो पॉजिटिव साइकोलॉजी बता रहा है, या पॉजिटिव साइकोलॉजी नई चीज़ों को भी एड्रेस कर रहा है, या उसने वहीं से आइडिया लेके बस उसको 2-4 नई चीज़ें डाल के उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है. दैट इज़ समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाई माइट वी नीड पॉजिटिव साइकोलॉजी. हमें ज़रूरत क्यों थी पॉजिटिव साइकोलॉजी की. इतने और ब्रांचेस, डिसिप्लिन्स साइकोलॉजी के ऑलरेडी
मेन स्ट्रीम में इमर्ज हुए थे. वाई वी नीडेड दैट, वाई वी नीडेड पॉजिटिव साइकोलॉजी. ठीक, तो भी एक तो ये इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ स्टिल आई कंसिडर इट एज अ न्यूली डेवलप्ड सब्जेक्ट. इसमें अभी भी बहुत रिसर्चेस हो रही हैं, बहुत स्कोप है, बहुत काम की अभी भी ज़रूरत है. वाई? बिकॉज कुछ समहाउ लेटली ये डेवलप हुई भी एक फील्ड है, क्वाइट लेटली, सम 2 decades और 3 decades ago, कुछ 20 ईयर्स से ज़्यादा इसको नहीं होने. ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम जब ये मर्ज हुआ था. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हम अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, हाउ वी आर सपोज टू डिफाइन पॉजिटिव साइकोलॉजी. Sorry for the interruption. Alright, when we define positive psychology is the scientific study of strengths and virtues that enable individuals and communities to thrive and flourish. This discipline is all about exploring strengths, morality, values, virtues of individuals and making them capable to thrive as a person and also to contribute towards their communities in order कि communities itself as a whole जो है वो collectively भी thrive कर सकें. ठीक है, और उनको हम better कैसे बना सकते हैं. This is what all about positive psychology is. The field is founded on the belief that people want to lead meaningful, fulfilling lives, to cultivate what is best within themselves and to enhance their experiences of love, work and play eventually. Alright, again this is the same definition. Recap है कि this is what positive psychology is. पॉजिटिव साइकोलॉजी की assumptions क्या हैं, क्यों पॉजिटिव साइकोलॉजी किन किन assumptions के ऊपर वर्क करना चाहती थी. द मेयर रिलीफ ऑफ सफरिंग डज नॉट लीड टू वेल बीइंग. वो कहते हैं कि जो आपका सिर्फ रिलीफ है किसी भी सफरिंग से, दैट विल नॉट लीड यू टूवर्ड्स द वेल बीइंग. वेल बीइंग एक फुली फंक्शनिंग पर्सन, एक कंप्लीट होल इंडिविजुअल की एग्जाम्पल है. वेल बीइंग को हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट बेसिकली वेल बीइंग इज़. अगर आप इसका लिटरल मतलब देखें तो आपकी जो ह्यूमन बीइंग की जो वेलनेस है उसके ऊपर बात करता है. तो वो कहते हैं कि सिर्फ जो रिलीफ है सफरिंग से वो वेल बीइंग की तरफ लीड नहीं करता. इट ओनली रिमूव्स वन ऑफ द बैरियर्स टू वेल बीइंग. वो सिर्फ एक बैरियर को ज़रूर रिमूव कर देता है जो वेल बीइंग के रास्ते में हर्डल क्रिएट करी थी, बट totally or completely it does not lead to the well-being. Because however well-being is a process that is over and above the absence of depression, anxiety and anger. जो well-being है ये वो process है that is something beyond depression, anxiety and anger की absence. सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर अगर anxiety, anger और depression और frustration और conflicts इन चीज़ों की absence होगी तो आप well-being achieve कर लेंगे. No, well-being is much more to it. Well-being is beyond all these issues. ये आपको ज़्यादा क्लियर तब होगा, कैसे होगा, जब हम इसको well-being के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. Alright, then it is about strive. Positive psychology was actually strived for parallel classification system. It strived for reliable and valid methods of assessment, prospective longitudinal studies, efficacy and effectiveness studies of intervention, and many efforts to promote funding, interest and cross-fertilization of ideas. इन सब चीज़ों की तरफ वो लेके चल रहा था कि हमारे पास अगर डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल है बीमारियों को, इलनेसेस को, इब्नॉर्मेलिटीज़ को आइडेंटिफाई और डायग्नोज करने के लिए इन साइकोलॉजी जो DSM है, जो एक प्रॉपर क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे जिसकी हेल्प से हम जो है वो डायग्नोज करते हैं प्रॉब्लम्स को और उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. वो कहते हैं इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए हमें एक पैरेलल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी चाहिए जिसमें हम लोगों की वेल बीइंग, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी हैप्पीनेस, इन चीज़ों को टेस्ट करें और फिर हम उसके ऊपर काम करना शुरू करें. और फिर हमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक न्यू फील्ड है, तो हमें और बहुत सारे रिलायबल वैलिड मेथड्स की भी ज़रूरत है जिनसे हम इन चीज़ों को असेस कर सकें. वी नीड टूल्स टू असेस हैप्पीनेस, वी नीड टूल्स टू असेस वेल बीइंग, वी नीड टूल्स टू असेस साइकोलॉजिकल वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स. इन सब चीज़ों की हमें रिलायबल वैलिड टूल्स की हमें ज़रूरत है. बिकॉज न्यूली डेवलप्ड है तो उस तरह से चीज़ें अवेलेबल नहीं है. स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पर तो बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को मेजर कर सकते हैं. मगर ऑफ कोर्स इन चीज़ों पर लेटली ये बनना शुरू हुए. तो जब ये आइडिया उसको आया
और उसने ये फॉर्मुलेट किया सब्जेक्ट एरिया, तो तब हमने जाके उसका ये भी एक उसमें मेन एम था कि हम इसको प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्म में इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। हमने जो ऊपर सारी पिक्चर में देखी थी, हैप्पीनेस, वेलबींग, इमोशंस, सिविलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सब चीज़ों को वो कहते हैं कि हमने वी नीड टू डिस्कस एंड वी नीड टू एड्रेस देम साइंटिफिकली। हम इसको एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे और हम एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस देखेंगे बाय एम्प्लॉइंग इंटरवेंशन ऑन टू डिफरेंट स्टडीज़। हम उन चीज़ों को, उन स्टडीज़ की इंटरवेंशंस को, की एफिकेसी को हम चेक करेंगे बाय नॉचेस। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट स्लाइड में दे टॉक अबाउट कि 2 अप्रोचेस टू इम्प्रूव ह्यूमन कंडीशन, दैट इज़ टू रिलीव। कहते 2 अप्रोचेस हैं दैट कैन ओनली इम्प्रूव ह्यूमन कंडीशन। वन इज़ टू रिलीव फ्रॉम व्हाट इज़ नेगेटिव। एक तो आपको रिलीव ज़रूर मिलना चाहिए उस चीज़ से जो नेगेटिव है, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी बात करती है। ऑटोमेटिकली अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इन कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट पर्सनालिटी इश्यूज़, इन चीज़ों का अगर आप शिकार नहीं हैं या इन चीज़ें आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कंडीशन एक इम्प्रूव्ड कंडीशन है। तो एक, और अगर आप हैं तो इसको निकालना, इससे रिलीफ लेना इम्पॉर्टेंट है अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। देन इट इज़ अबाउट, आपने स्ट्रेंथन करना है पॉजिटिविटी को। जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपके पास हैं, यू थिंक टू बी एंड यू वर्क टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी। यू थिंक पॉजिटिव, यू डू पॉजिटिव एंड यू बी पॉजिटिव। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर यू नीड। ऑल राइट, अब हम इसको जब देखते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम जब भी कोई न्यू एरिया, कोई न्यू सब्जेक्ट, या जब भी हम कोई भी डिसिप्लिन को स्टडी करना शुरू करते हैं, कोर्स को पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम उसके जो मेजर एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो मेजर फाउंडर्स होते हैं या फादर्स ऑफ सब्जेक्ट के होते हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हु फाउंडेड इट, इस पूरे सब्जेक्ट को, हु वर एसोसिएट विद द मेन एक्सपोनेंट, कौन कौन लोग थे जिनकी कंट्रीब्यूशन थी, हु वर दोज पीपल। ठीक है, तो इसमें वन इज़ मार्टिन सेलिगमैन। मार्टिन सेलिगमैन वॉज बेसिकली अमेरिकन साइकोलॉजिकल प्रोफेसर जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी के अंदर काम कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया में। इनकी जो पीएचडी इटसेल्फ जो थी वो ऑब्वियसली इसके ऊपर नहीं थी, क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी पे बहुत लेटर ऑन इन्होंने जो है वो इस सब्जेक्ट को डिस्कवर किया। इससे पहले ही वॉज ऑल्सो वर्किंग एज अ मेन स्ट्रीम साइकोलॉजिस्ट, राइट। इनके बाद इसके एसोसिएट थे मिहाइल सीजेंथिमाइल, जिनका नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। ये भी ही वॉज एन हंगेरियन प्रोफेसर। लेटर ऑन इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है मार्टिन सेलिगमैन के साथ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हम आज पढ़ते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी, उसमें इनकी कंट्रीब्यूशन मार्टिन सेलिगमैन के साथ साइड बाय साइड आपको नज़र आती है। स्टार्टिंग प्लेस क्या था मार्टिन सेलिगमैन जो था? अच्छा, थोड़ी सी इनके बारे में इनकी फ़ीचर्स हैं कि ही वाज एन एपीए प्रेसिडेंट 1996 में। साइकोलॉजी जब स्प्लिट हुई इनटू 2 कैंप्स, academics more interested in science, clinicians interested in practice of psychotherapy. So he brought and he hoped to bring science and practice together. उस वक्त एकेडमिक साइंस में इंटरेस्टेड थे, क्लिनिशियंस साइकोथेरेपी में इंटरेस्टेड थे। तो 2 कैंप्स में साइकोलॉजी स्प्लिट हुई हुई थी। तो ही थॉट एंड ही होप टू ब्रिंग साइंस एंड प्रैक्टिस टुगेदर। इनका पर्पज़ ये था कि हम एकेडमिक्स को, साइंस को, रिसर्च को और प्रैक्टिस को, इन दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली लेके चलें एंड लेट्स ब्रिंग देम टुगेदर। ऑल राइट, इवेंचुअली पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो फर्स्ट पॉजिटिव साइकोलॉजी का समिट था 1999 में हुआ। सो यू कैन टेक एन आइडिया फ्रॉम हेयर कि 1999 वाज नॉट दैट फार, ठीक है, फार बैक। हम बड़ा लेटली ये इसका पहला समिट हुआ। इसकी फ़र्स्ट कॉन्फ्रेंस 2002 में हुई। फिर 2006 में ये एज अ प्रॉपर कोर्स इंट्रोड्यूस कराया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। लुक इनटू दिस के 2006 में जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी पॉजिटिव साइकोलॉजी का सब्जेक्ट 2006 में जाके इंट्रोड्यूस हुआ। इससे ये भी पता लगता है कि जब कोई नया सब्जेक्ट, कोई नई चीज़ आती है, मार्केट में भी लेट से कोई नई चीज़ आती है, तो उसको अपनी जगह बनाने में, उसको अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाने में बड़ा टाइम लगता है। तो इवेंचुअली लोगों ने बड़ा लेट इस सब्जेक्ट को जो है वो
कंसीव किया और लेटेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो है उनकी रिलायंस हुई कि वाकई में इट इज़ अ सेपरेट इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन और ये एक नीडफुल डिसिप्लिन है, इसकी इट्स अ नीड ऑफ द आवर और ये सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है. दिस सब्जेक्ट हैज़ डिस्कस्ड और इज़ बेसिकली हैज़ शेड लाइट ऑन वेरियस इम्पॉर्टेंट इशूज़ जिनको हम पहले नहीं जान रहे थे. देयरफॉर बाद में फिर लोग इसको इन चीज़ों की बेसिस पे इनको जब रियलाइज़ होता है तो अडॉप्ट. ऑलराइट, देयर इज़ दिस इंसिडेंट जिसको निकी एंड द वीड्स के इंसिडेंट से पॉजिटिव साइकोलॉजी में विच इज़ वेरी फेमस. अच्छा, अब ये कैसे फेमस है इस इंसिडेंट से, क्योंकि प्राइमरीली इस इंसिडेंट ने मार्टिन सेलिगमैन के अंदर आइडिया डाला अबाउट पॉजिटिव साइकोलॉजी. हाउ इसकी ये जो इंस्पिरेशन है इज़ फ्रॉम दिस इंसिडेंट. एक रीडिंग गार्डन था बेसिकली. रीडिंग गार्डन में पहले मैं आपको ये नरेट कर देती हूँ जो इसमें लिखा हुआ है इंसिडेंट, और उसके बाद फिर मैं इसकी डिटेल आपको बताती हूँ कि हाँ. ऑलराइट. 5-year-old daughter throwing weeds. Seligman, irritated, yelled at Nikki. Nikki said, "Daddy, from when I was 3 until I was 5, I was a whiner. I whined every day. But on my 5th birthday, I decided I wasn't going to whine anymore. That was the hardest thing I have ever done. So if I can stop whining, you can stop being such a grouch." Alright. वो कहता है इस इंसिडेंट में कि both Seligman and his daughter Nikki were actually weeding plants and all that. ठीक है, तो वो दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे in their own garden. At that time निक्की जो है एज अ 5-year-old kid, उसने जो है वो वीड्स को सीड्स को चीज़ों को वो जो है फेंक रही थी. शी वॉज थ्रोइंग ऑल अराउंड. शी वॉज एक्चुअली प्लेइंग विद ऑल दिस अराउंड. एक 5-year-old kid क्या कर सकता है? that 5-year-old kid obviously she wouldn't be involved in that plantation activity so seriously. तो उसने अपनी एक playful activity ढूंढी और वो काम करने लगी. Seligman got irritated. Like every father, most of the father, there are very few fathers we have seen who actually takes interest and who enjoys their children nonsense activities. Most of the time our parents get annoyed, so like most of the father, Seligman also got irritated and he yelled at Nikki. उसने खूब डांटा उसको like parents do. ठीक है, तो उसने कहा कि जी she was astounded. वो थोड़ा हैरान हुई और फिर उसके बाद she was definitely be upset. She said कि जब मैं 3 साल की थी and I whined, मतलब मैं वाइनिंग का मतलब है वो बड़ी श्रिल सी आवाज़ें निकालती थी, बहुत ज़्यादा वो एनोइंग वॉइस में बात करती थी या बोलती थी. तो उसने कहा कि मैं भी करती थी, मगर 5th बर्थडे पे when I become 5-year-old तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी ये आदत बड़ी एनोइंग है सब लोगों के लिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट एनी मोर. दैट वॉज द हार्डेस्ट थिंग आई हैव डन. वो कहती है ये सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए करना. एक आपकी एक आदत हो, एक हैबिचुअल हो आप एक चीज़ को, और आपको उसको छोड़ना पड़ जाए क्योंकि आपको तो ये चेंज करना है. यू हैव टू स्टॉप डूइंग नेल बाइटिंग. ठीक है, तो वो कितना डिफ़िकल्ट टास्क होता है हमारे लिए एज एन एडल्ट और एज एन चाइल्ड बोथ. तो उसके लिए भी इट वॉज अ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क. तो वो कहती है अगर मैं एज अ 5-year-old I can tell myself and I can promise with myself and then I can stop doing that activity which I was habitual of doing, then why can't you stop being such a grouch? Grouch का मतलब है कि आप क्यों इरिटेट होना बंद नहीं कर सकते, आप बैड टेम्पर थ्रो करना बंद क्यों नहीं कर सकते. This was the lesson that has been left a significant impact on Seligman. And from that time on he decided about कि जी मैंने जो मेरा पर्पज़ है it is about change. It's about how we resolve to change. His purpose in life was not to correct his daughter's shortcoming, instead raising her to nurture the strength she displayed. उसने कहा कि मेरा अब फोकस उसकी इस किसी चीज़ को
करेक्ट करने से ज़्यादा, उसकी शॉर्ट कमिंग्स को करेक्ट करने से ज़्यादा ये होगा कि जो स्ट्रेंथ्स उसने शो की हैं, जो सोशल इंटेलिजेंस उसने दिखाई है, जो चीज़ उसने मुझे सिखाई है, मैं उसी को नर्चर करूँ। उसकी जो स्ट्रेंथ उसके अंदर मौजूद है, आई शुड नर्चर दोज स्ट्रेंथ्स। तो क्वेश्चन है कि जी द कैन साइकोलॉजिकल साइंस बी अबाउट आइडेंटिफाइंग नर्चरिंग स्ट्रेंथ्स? ऑफ कोर्स psychological science was not talking about nurturing strengths at that time. ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के आने के बाद दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन नर्चरिंग स्ट्रेंथ्स। सो इसका मे बी प्रेसिडेंट के उसने नर्चरिंग स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। अब पैरेलल्स टू ट्रीटिंग पीपल क्या है, किस तरह से हम लोगों को जो है वो ट्रीट करेंगे, किस तरह से हम देखेंगे। उसने कहा कि पहला जो मॉडल है वो तो साइकोथेरेपीज़ और मेडिकेशन का मॉडल चलता था, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेल्पलेसनेस, इन चीज़ों से ओवरकम कराने के लिए लोगों को। बट जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का मॉडल होगा वो एक पैरेलल मॉडल है जो इनकरेज करेगा डिप्रेस लोगों को टू गेट बैक टू देयर लाइफ, हु आर नॉट विलिंग टू लीव होम। ये वो मॉडल है दैट इज़ गोइंग टू encourage depressed, stressed, frustrated people to get out of their life, take a control of their lives again. Small steps में उनको जो है वो ज़िंदगी की तरफ वापस लेके जाएगा ये सब्जेक्ट उनको सिखाएगा, ठीक है। उनका आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगा उनका डिफ़िकल्टी लेवल, शो देम दैट दे डू हैव अ कंट्रोल देयर लाइव्स। ऐसा नहीं है कि जब अगर वो बीमारी से उठ गए हैं, बीमारी से ठीक हो गए हैं, तो अभी तक जो है उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि एक डिप्रेशन के स्टेट में, फ्रस्ट्रेशन के स्टेट में आप ख़ास तरह से यू लॉस्ट कंट्रोल ओवर योर सेल्फ्स। तो आपको उस चीज़ के साथ सस्टेन नहीं करते रहना। जब आपका डिप्रेशन, एंजाइटी कम हो भी गया है और आप अब रिकवरी की तरफ भी हैं, सो नाउ अगेन यू गेट बैक एंड रीगेन योर लाइफ रूटीन लाइक नॉर्मल। मोटिवेट करना, उनको गेन्स सिखाना। प्रिवेंशन ऑफ हेल्पलेसनेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही सिग्निफिकेंट जो था वो कंट्रीब्यूशन थी सेलेक्टमेंट की, जो उसने कहा कि हम हेल्पलेसनेस से किस तरीके से जो है वो रिफ्रेन कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट हेल्पलेसनेस, दैट वाज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लाइक वेलबींग की तरह और बहुत सारे इश्यूज़ की तरह ये भी एक इसका मेजर एरिया था जिसके ऊपर इसने काम किया, ठीक है। वो कहता है कि हेल्प सजेस्ट दैट बेस्ट प्रिवेंशन फॉर हेल्पलेसनेस इज एक्सपीरियंस विद मास्टरी। हमें जल्द अज जल्द, वो कहता है कि आपको जब लोगों को ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है, व्हेन पीपल हैव लर्न दिस एस्पेक्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर दे हैव नो कंट्रोल, सो देयरफॉर दे आर सपोज टू सिट बैक एंड सी थिंग्स द वे दे आर गोइंग एंड लेट थिंग्स गो द वे दे आर गोइंग, ठीक है। वो कहता है कि हम ये लर्न कर लेते हैं हेल्पलेसनेस को, वी लर्नड हेल्पलेसनेस, कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको जो है वो ऐसे ही होती हैं, वो हो जाती हैं, तो देयरफॉर हमें कुछ नहीं करना चाहिए। वो कहता है दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। वो कहते हैं इसको रिड्यूस करने का, इससे प्रिवेंट करने का, इससे ओवरकम करने का तरीका ये है कि हम बहुत अर्ली एजेस में लोगों को मास्टरी सिखाएं। we need to make children learn at very early stage, or we really need to make adults learn at a certain stage of point, that you should learn mastery, you should know how to deal with the problem, you should think about solving issues, you need to think about solving different aspects of how to get out of this situation or how to get rid out of this situation, ठीक है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, उसने कहा कि हम based on life histories of people who were resilient in situations likely to cause helplessness, ऐसे लोग जिनकी लाइफ में वो बड़े रिजिलियंट रहे होते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस, वो बहुत कम होता है कि उनमें हेल्पलेसनेस आ जाए। सेल्फ एफिकेसी, कम्पिटेंस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस सर्व एज अ बफर। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, आपको अपने ऊपर, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये हेल्पलेसनेस को डील करने में या इससे प्रिवेंट करने में